Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Yesterday we discussed about the markets according to the time. हमने कल पढ़ा था मार्केट को टाइम के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने दो मार्केट डिस्कस किए थे, वेरी शॉर्ट पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड. Very short period is a time period where all the factors are not variable. So here all the factors are constant, क्योंकि इतना कम टाइम होता है कि किसी भी फैक्टर को हम यहाँ वेरिएबल नहीं रख सकते. So all the factors are fixed. So supply is constant in this time period. Supply यहाँ पर क्या होती है? Constant होती है. So the prices is affected by the demand or change according to the demand. If demand increases, the prices also increases. If demand decreases, the prices also decreases. On the other hand, if there is a short-term market where all the factors are not changeable, some factors are fixed and some are changeable. So supply is changeable, less elastic. Supply में बहुत कम change होता है. Here the effect of demand is more affected than the supply. यहाँ भी effect का demand का effect supply से ज़्यादा रहेगा. So today we discuss about the long term. आज हम बात करते हैं long term की. लॉन्ग टर्म मार्केट. लॉन्ग टर्म मार्केट कहाँ होता है? व्हेन ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. ये वो समय होता है जब सारे फैक्टर्स वेरिएबल हैं. सो द सप्लाई इज मोर इलास्टिक. यहाँ पे सप्लाई क्या है? मोर इलास्टिक होती है. सो इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड. यहाँ हम देखेंगे, हमने देखा था इट इज ओ एक्स एक्सेस, इट्स ओ वाई. वी जस्ट टेकिंग द प्राइस ऑन ओ वाई एक्सेस एंड डिमांड and supply on OX axis. As you earlier studied, in very short period of time, the supply is constant. जो very short period होता है उसमें supply क्या होती है? Constant होती है. So the supply curve is parallel to OY axis. In short period, the supply is less elastic. So your supply curve, जो short period supply curve है, that start from OX axis. जो very short period होता है उसमें constant है supply. Short period में it is less elastic, so it starts from the OX axis. It is short period time. When we just talk about the long period time, so the supply curve will start from the OY axis. It is the long period supply. So here the supply curve will start from the OY axis. ये जो supply curve है OY axis से start हो रहा है. तो टाइम के अकॉर्डिंग आपको सप्लाई की कंडीशन समझ में आ गई. इन वेरी शॉर्ट पीरियड सप्लाई इज कांस्टेंट एंड पैरेलल टू OY एक्सिस. जो सप्लाई कर्व है दैट इज पैरेलल टू OY एक्सिस. इन शॉर्ट टर्म पीरियड where all the factors are not variable, some factors are fixed, some are variable, so supply is less elastic. So the supply curve will start from the OX axis. In long term, where all the factors are variable, so the supply is more elastic. Here the supply curve will start from OY axis. ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. तीनों सप्लाई कर्व क्लियर हो गए? खुश Yes, ma'am. है ना? अब देखिए, नाउ वी जस्ट सी द चेंज इन डिमांड. अब हम डिमांड की बात करते हैं. ये हमारा डिमांड कर्व है. यहाँ हम देख रहे हैं इक्विलिब्रियम हो रहा है. ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं. तो इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है, इसलिए प्राइसेस डिसाइड है P. अगर आपके डिमांड बढ़ जाती है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया E1. प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. ठीक है, यहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों की क्वांटिटी बढ़ी है. जब हम देखते हैं ये जो क्वांटिटी है वो डिमांड और सप्लाई दोनों की क्वांटिटी में इंक्रीज हुआ है. देख रहे हैं यहाँ पर? ठीक है. सो दिस कर्व इज नोन एज द लॉन्ग टर्म सप्लाई कर्व विच इज मोर इलास्टिक. वो ज्यादा चेंजेबल है. जैसे ही डिमांड चेंज होती है
सप्लाई ऑल्सो चेंजेस। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, सप्लाई इज चेंज अकॉर्डिंग टू द डिमांड। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका वेरी लॉन्ग पीरियड। Very long period. It is a period of time where all the things are changeable. Here, the supply is also change, more elastic because of change in technology, new inventions also, innovations also. क्योंकि बहुत लंबा पीरियड है तो सारी टेक्निक्स बदल जाती है। अभी हमने लॉन्ग टर्म में देखा टेक्निक शायद ना बदले, लेकिन वेरी लॉन्ग पीरियड में टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, इनोवेशंस चेंज हो गए हैं, इसलिए सप्लाई कर्व बहुत फ्लैट माना जाता है। जैसे डिमांड चेंज होती है सप्लाई भी चेंज होती है। ऑन द अदर हैंड डिमांड इज कर्व इज ऑल्सो फ्लैट, क्योंकि डिमांड भी चेंज है, कंज्यूमर्स की जो टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, वो चेंज हो जाते हैं, कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाती है वहाँ पर, और यहाँ तक हम मानते हैं कि जो पॉपुलेशन है उसका कंपोजिशन भी वहाँ पर चेंज हो जाता है। इसलिए जब हम वेरी लॉन्ग पीरियड की बात करते हैं तो उसमें डिमांड कर्व होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैट्स पाए जाते हैं। ओ एक्स एक्सिस पे हम लेंगे डिमांड एंड सप्लाई, ओ वाई एक्सिस पर हम लेंगे प्राइस, ये आपका डिमांड कर्व, और ये आपका सप्लाई कर्व। देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्लैट पाया जाता है। सो हियर द डिमांड इज जस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई। डिमांड में भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, जैसे हमने देखा कि टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए, पॉपुलेशन का कंपोजिशन चेंज हो गया। इसी तरह से सप्लाई एस्पेक्ट्स में भी हम टेक्नोलॉजिकल चेंज देखते हैं, न्यू इन्वेंशंस ऑल्सो देयर। ठीक है, तो दोनों कर्व कैसे हो गए, फ्लैट हो गए। जहाँ ये इक्विलिब्रियम होता है वहाँ पर प्राइजेस डिसाइड होती हैं। ठीक है, अगर प्राइस बढ़ जाती हैं, प्राइजेस इंक्रीज होके कहाँ हो गई, P से P1। इफ प्राइजेस इंक्रीजेस, क्या देख रहे हैं आप, हियर डिमांड इज लेस देन सप्लाई। जब प्राइस ज़्यादा हो जाती है तो डिमांड क्या हो जाती है, डिक्रीज, और सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज। ये बात समझ में आ गई कि व्हेन प्राइजेस इंक्रीजेस डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ये क्लियर हो गया? आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. ये बात समझ में आ गई? व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस डिमांड इज लेस देन सप्लाई। अब जब डिमांड सप्लाई से कम है यानी सप्लाई ज्यादा है, व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड देन प्राइसेस क्या होंगे, प्राइसेस व्हेन सप्लाई इज मोर देन डिमांड, जब सप्लाई डिमांड से ज्यादा है तो प्राइस इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, जोर से बोलो, Decrease. डिक्रीज। सो द प्राइजेस डिक्रीजेस। अब आपकी प्राइस डिक्रीज हो गई। जब आपकी प्राइजेस डिक्रीज हो गई तो क्या देख रहे हैं, प्राइस कम होने से सप्लाई इज लेस देन डिमांड, यानी प्राइस के कम होने से डिमांड क्या हो गई, इंक्रीजेस, और सप्लाई क्या हो गई, डिक्रीजेस। जब सप्लाई कम है नाउ द प्राइजेस इंक्रीजेस। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुए, वापस से डिमांड इज लेस देन सप्लाई, फिर प्राइस डिक्रीजेस। इस तरह से एक सर्कल चलता रहता है और हम वापस से उसी इक्विलिब्रियम पर वापस आ जाते हैं। इसे कॉब वेब भी कहा जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? Yes, ma'am. दिस इज द लॉन्ग टर्म मार्केट। ओके, जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज हो जाते हैं, सप्लाई साइड में इनोवेशंस हो जाती हैं, वहीं डिमांड साइड में हम देखते हैं कंज्यूमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं, वहीं पॉपुलेशन की कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है। ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं जो अदर मार्केट्स है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपटीशन। तो आज हमारा टॉपिक है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। Perfect competition market. First of all, I want to clear what is perfect competition market. Perfect competition market is a market where there is a large number of buyers and sellers.
दे प्रोड्यूस होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, फुल कंपटीशन एग्जिस्ट इन द मार्केट। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट है, नाम से पता चल रहा है फुल कंपटीशन यहाँ पर है। सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इज देयर, क्योंकि फुल कंपटीशन कब होगा, जब बहुत सारे लोग होंगे। और कंपटीशन कब होता है, जब एक ही चीज के लिए सब कर रहे होते हैं काम, यानी होमोजीनियस प्रोडक्ट्स आर देयर। व्हाट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट? सिमिलर काइंड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉन एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। जब एक जैसी क्वालिटी, पैकिंग, डिजाइन, किसी तरह का कोई डिफरेंस नहीं है, दैट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट। So the perfect competition market is a market where large number of buyers and sellers just produce homogeneous market. तो एक ऐसा मार्केट जिसमें homogeneous प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, दैट इज परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब इसके हम फीचर्स देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मार्केट की। हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। सबसे पहले हमने डेफिनेशन में से ले लिया लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। सबसे पहली क्वालिटी क्या होगा इसमें? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, यानी मार्केट में बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। तो बहुत सारे बायर्स और सेलर्स होते हैं। सेकेंड हमने देखा होमोजीनियस। होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, व्हाट इज होमोजीनियस प्रोडक्ट? सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉन एज होमोजीनियस प्रोडक्ट, यानी पैकिंग, डिजाइन, कलर, ब्रांड, इवन द नेम भी सेम होता है। सो दैट इज नॉन एज होमोजीनियस। क्वालिटी, पैकिंग, कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, दैट इज नॉन एज होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड, क्योंकि कंपटीशन है, फ्री एग्जिट एंड एंट्री। फ्री एग्जिट और एंट्री, यानी इंडस्ट्री में कोई भी फर्म अंदर आ सकती है, कोई भी फर्म बाहर जा सकती है। तो फ्री एग्जिट और एंट्री पाई जाती है। एंट्री पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते, जब आप क्विट करके बाहर निकलते हैं तो आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो थर्ड फीचर क्या हो गया? फ्री एंट्री और एग्जिट। फोर्थ है कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड फर्म। इसमें फर्म और इंडस्ट्री दोनों अलग अलग होती हैं, दो अलग अलग ओपिनियन हैं। फर्म जहां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहीं इंडस्ट्री इट इज अ ग्रुप ऑफ फर्म्स, एक ऑर्गेनाइजेशन है। फर्म तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इंडस्ट्री एक ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्म की यूनिट से बनी है। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस यानी ज्यादातर इसमें ऐसा माना जाता है, इमेजिन किया जाता है कि जितनी भी फर्म्स है दे आर लोकेटेड जस्ट नियर बाय द मार्केट। जितनी भी फर्म है वो मार्केट के आसपास है, क्योंकि बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग द होमोजीनियस प्रोडक्ट। जब होमोजीनियस प्रोडक्ट है तो प्राइस डिफरेंशिएशन है ही नहीं, सबकी एक जैसी प्राइस है। अगर कोई व्यक्ति मार्केट से दूर रहेगा और अगर वो प्लस करता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, सो देयर कॉस्ट विल बी इंक्रीजेस। उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो एक प्राइस जो गिवन है उससे कॉस्ट ऊपर नहीं होनी चाहिए। सो नो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आर हियर। किसी प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है फुल मोबिलाइजेशन। Full mobilization. What is full mobilization? The factors of production can move from one industry from one firm to another. कोई भी फैक्टर किसी भी फर्म से दूसरी फर्म की ओर जा सकता है, because all firms are producing the same kind of goods and services, whereas that is known as homogeneous product. तो सभी फर्में क्योंकि एक जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, so that is
फुल मोबिलाइजेशन, फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन किसी भी फर्म में जाकर प्रोडक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुल नॉलेज। फुल नॉलेज ऑफ द मार्केट, मार्केट की फुल नॉलेज है, क्यों है? बिकॉज सिमिलर काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, तो आपको पता है कि सभी की कलर, पैकिंग, डिजाइन, इवन साइज भी सेम है। सो यू हैविंग कंज्यूमर हैविंग द फुल नॉलेज अबाउट द मार्केट, कंज्यूमर को मार्केट की फुल नॉलेज वहां पर है। यहां तक समझ में आ गया? Yes, ma'am. These are the characteristics of the perfect competition market. अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की as the homogeneous products are produced in perfect competition market, क्योंकि perfect competition market में large number of buyers and sellers there is a difference between industry and firm, and all the firms are producing the same kind of goods and services. So here the prices are given, यहाँ पर prices क्या है? दी हुई है। अब देखिए how the industry will decided the prices. अभी मैंने आपसे कहा firm are the manufacturing unit, firm क्या बना रही है? प्राइजेस पर प्रोडक्शन कर रही है, प्राइजेस आर गिवन, उन्हें प्राइजेस से कोई टच नहीं करना, दे जस्ट एडजस्ट देयर कॉस्टिंग, वो अपनी कॉस्ट को एडजस्ट करेंगी। एंड इंडस्ट्री जो ग्रुप ऑफ फर्म है दैट डिसाइडेड द प्राइजेस। यहाँ आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ, हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री और फर्म की। मैंने आपसे कहा था इंडस्ट्री विल डिसाइडेड द प्राइजेस, इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है प्राइजेस को, तो हमने लिया OY पर प्राइस और OX पे लिया हमने डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि प्राइस किससे डिसाइड होती है? डिमांड और सप्लाई से डिसाइडेड होती है। एज यू नो द फर्म द इंडस्ट्रीज डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड एंड सप्लाई कर्व इज अपवर्ड. It is the equilibrium point where demand is just equals to supply. So the equilibrium prices will be decided. इंडस्ट्री ने क्या किया कि पूरी जितनी भी फर्में हैं, 2 फर्में हैं, 3 फर्में, 4 फर्में, वो सब मिलके कितना प्रोडक्शन करती हैं और कितनी उनकी मार्केट में डिमांड है, जहाँ डिमांड सप्लाई के बराबर है, दे डिसाइड द प्राइजेस एंड दिस प्राइजेस, ये जो प्राइजेस हैं इट इज गिवन टू द फर्म्स, ये प्राइजेस एट एज इट इज फर्मों को दे दी जाती है। अब फर्म के लिए प्राइस तो क्या है? गिवन, ठीक है, प्राइस आर गिवन, उन्हें क्या करना है? प्रोडक्शन। बिकॉज द प्राइजेस आर गिवन बाय द इंडस्ट्री, सो द फर्म रेवेन्यू कर्व इज कांस्टेंट। फर्म का जो रेवेन्यू है, एवरेज रेवेन्यू है, वो मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर पाया जाता है। एंड द फर्म्स रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू OX एक्सिस, जो फर्म का रेवेन्यू कर्व है वो OX एक्सिस के पैरेलल पाया जाता है। क्लियर? Yes, ma'am. इसको हम एग्जाम्पल से भी बता सकते हैं। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल बताएं इसमें कि प्राइजेस आर गिवन, प्राइस आपको दी गई है इक्वल्स टू 5 पर यूनिट, ठीक है, प्राइजेस क्या दिया आपको? 5 पर यूनिट प्राइस दी गई है। अब देखिए आपको क्या निकालना है? टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। यहाँ आपको यूनिट्स दी गई है, यूनिट्स जो आप ले रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 व्हाटएवर। अब प्राइस कितनी फिक्स है? 5 पर यूनिट। इफ यू सोल्ड 1 यूनिट, अगर आप 1 यूनिट बेचेंगे तो कितने की बिकेगी? 5 रुपए। 5 रुपीज। 2 यूनिट्स कितने की? 10 की। 10। हेयर टोटल के लिए हमने क्या किया? प्राइस इज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। TR कैसे निकला? प्राइस इज मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। तो 3 यूनिट 15, 20, 25। ओके, अब हमें निकालना है AR, एवरेज रेवेन्यू। कैसे निकलता है? एवरेज के लिए हमेशा TR अपॉन
क्यों? टोटल रेवेन्यू को क्या करेंगे, क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज रेवेन्यू निकल आएगा। 5 डिवाइडेड बाय 1 5, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 20 डिवाइडेड बाय 4 5, 25 डिवाइडेड बाय 5, एवरेज रेवेन्यू आ गया 5। ये जो हमारा AR होता है इट इज इक्वल्स टू P, क्योंकि प्राइस क्या होती है, पर यूनिट, और एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, पर यूनिट प्राइस, तो ये दोनों सेम होती है। अब हम MR निकालेंगे। MR का फॉर्मूला है TRN माइनस 1, यानी यू हैव टू डिडक्ट द प्रीवियस यूनिट फ्रॉम द नेक्स्ट यूनिट। अब यहाँ देखेंगे अपन TR की यूनिट्स देखेंगे। 5 के पीछे कुछ नहीं, 5 में 0 गया 5, 10 में से 5, नेक्स्ट यूनिट में से प्रीवियस निकाल रहे हैं, 10 में से 5 5, 15 में से 10 5, 20 में से 15, 25 में से 20, सो हेयर AR इक्वल्स टू MR, यानी जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है उसमें एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है एंड द रेवेन्यू कर्व इज पैरेलल टू OX एक्सिस। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज द इंडस्ट्री डिसाइडेड द प्राइजेस एंड ड्यू टू द होमोजीनियस प्रोडक्ट्स द प्राइजेस आर कांस्टेंट। हियर द फर्म इज ओनली प्राइस टेकर। फर्म क्या है? प्राइस को ले रही है, नॉट प्राइस मेकर। प्राइस तो किसने बना दी? इंडस्ट्री ने। तो हमारा डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा। वापस हम देख रहे हैं इंडस्ट्री और ये आ गया आपका फर्म। जब आप बनाते कि इंडस्ट्री ने आपको प्राइसेस दी, यहां डिमांड एंड सप्लाई, ये आपका डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड, जहां इक्विलिब्रियम, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइसेस डिसाइडेड एंड दीज प्राइसेस आर जस्ट फॉरवर्डेड टू द, ये आपको फर्म को दे दी गई बिकॉज प्राइजेस आर फिक्स्ड, क्योंकि प्राइजेस फिक्स्ड हैं। सो AR इक्वल्स टू MR। यहां आप करेंगे प्रोडक्शन ऑन गिवन प्राइजेस। आप प्राइस को टच नहीं कर सकते, प्राइस इज गिवन फॉर द फर्म, यू जस्ट प्रोड्यूस। अपनी कॉस्टिंग को प्राइस से कम कर सकते हैं लेकिन यू डू नॉट टच द प्राइजेस, आप प्राइजेस को टच नहीं करेंगे। ये क्लियर आ गया? रेवेन्यू कर्व समझ में आ गया? रेवेन्यू कर्व समझ में आ गया? Yes, ma'am. यहां तक कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके, अब आप क्वेश्चन लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट्स? व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस प्रोडक्ट्स? सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, वाई अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट, वाई अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट why a firm in perfect competition market is a price taker? Why a firm in perfect competition market is a price taker? लिख लिया? थर्ड क्वेश्चन लिखिए, why a firm's revenue curve, why a firm's revenue curve in perfect competition market, why a firm's revenue curve in perfect competition market is parallel to OX axis, is parallel to OX axis. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, why there is a absence of transportation charges, why there is a absence of transportation charges in perfect competition market?
why there is a absence of transportation charges in perfect competition market. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, in which market the supply curve is constant? In which market the supply curve is parallel to y axis, ऐसा भी लिख सकते हैं, या is constant, या ऐसा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग. फाइंड आउट द फॉर्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग. ऑप्शन लिख लेंगे आप, TR, AR यानी टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू. इनके फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए. नेक्स्ट लिखिए, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्ट कंपटीशन मार्केट? कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए. 7 हो गए, सफिशिएंट है. ठीक है, यू जस्ट राइट डाउन ऑल द आंसर्स इन योर नोट कॉपी. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम just discuss in next class. Okay? Yes, ma'am. ठीक है, आज इतना ही करेंगे. Okay, thank you. Have a nice day. Yes, ma'am.